presidency is like a second home to us. First of all, our teachers, bio teacher is from Kanpur and chemistry teacher is from Bihar also. हमारे इस कॉलेज में बहुत सारे फैसिलिटी हम लोग को मिल रहा है. बायो स्पेशलिस्ट टीचर फ्रॉम आवर साइड सर फ्रॉम कानपुर एंड আমি এত বেশি সৌভাগ্য একজন গার্জিয়ান, এত ভালো ফ্যাকাল্টিস, এত ভালো ওদের সিস্টেম এডুকেশনের, বিশেষ করে যারা ম্যানেজমেন্টের মেম্বাররা আছেন এবং এই অঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থা টিউশন নির্ভর নোটের উপর ভর করে অধিকাংশ শিক্ষার্থী নিজেদের দক্ষতা বিকাশে পারদর্শী। এই প্রাগৈতিহাসিক ভাবনাকে লাস্ট বেঞ্চে বসিয়ে স্বচ্ছ একাডেমিক কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে প্রতিভা পরখ করার সুযোগ হচ্ছে সুপার 30 পরীক্ষা। 2022 এই সুপার 30 পরীক্ষায় প্রথম স্থান অর্জন করে কাবুগঞ্জ হলিক্রস স্কুলের ছাত্র আলী আহমেদ মজুমদার, ওই স্কুলের ছাত্র হাসান মজুমদার পেয়েছে দ্বিতীয় স্থান। তাছাড়া অগ্রত বিদ্যানিকেতনের ফারহানা বেগম লস্কর তৃতীয় স্থান অর্জন করে। রবিবার আনুষ্ঠানিকভাবে সুপার 30 তালিকা ঘোষণা করা সঙ্গে কৃতিত্বের হাতে সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, সোনাই রোডের প্রেসিডেন্সি জুনিয়র কলেজের ব্যবস্থাপনায় গত 6 এবং 13 ফেব্রুয়ারি সহ রবিবারের অফলাইন পরীক্ষার পর ফল ঘোষণা নিয়ে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ছিল ব্যাপক উৎসাহ। সেরা বাছাই 30 জন স্টুডেন্টকে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে গোটা বছর বিনামূল্যে ভর্তি সহ কোচিংয়ের পাশাপাশি সম্পূর্ণ একাডেমিক সুবিধা দেওয়া হবে। এছাড়া বর্ধিত সম্মাননা হিসেবে ওই তালিকায় থাকা প্রথম 10 জনকে আর্থিকভাবে পুরস্কৃত করা হবে। সেই হিসেবে প্রথম পুরস্কার হিসেবে ছিল 25,000 টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার 20,000 টাকা এবং তৃতীয় পুরস্কার 15,000 টাকা। পরে সংবাদ মাধ্যমে আয়োজকদের পক্ষ থেকে অধ্যক্ষ ডক্টর জিয়াউদ্দিন মজুমদার, পরিচালন কমিটির সভাপতি NU তালুকদার, ডিরেক্টর সোহেল আহমেদ খান, ডিরেক্টর আবাহন সরকার প্রমুখ এই অঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিজ্ঞানসম্মত বিপ্লব আনার পক্ষে নিজেদের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেন। Assalamu alaikum. First of all, my name is Nikita Jaman Lashkar and I'm from HS Second Year Science. I'm here today. Our teachers have, our management members and all the teachers have asked us to come and to felicitate our the newcomers who have been got the prizes. I would like to say that here all of us like presidency is like a second home to us. First of all, this is for us means for the hostelers basically. We are getting the best facilities and we are feeling that this is our second home. Here we are getting good classes, be it mathematics, physics, chemistry, biology and all other subjects, English, alternative English, all the subjects have been taught very nicely. Secondly, we are being given the drone classes and the robotics classes. There are projectors here for better understanding of all the subjects. There are projectors for biology classes. There are microscopes present in our labs. There are physics lab, chemistry lab, biology lab. Every lab are present here. Secondly, I would like to say about the food and lodging. Basically, we all students are very much feared before joining to hostel that we won't get good food. But I personally feel that here we can get good food. Secondly, I would like to say that therefore they are trying their level best to make us understand, and they are making us self-sufficient. Actually, we are self-sufficient here. We are not dependent on anyone. They are making us self-dependent. And secondly, I would like to say that in every classes they are trying to describe all the things practically. And the best part here I would like to say is our management members, our fathers. I would like to say our second fathers. Yeah, yes sir. Safety is very exactly sir. We feel very secure in their hands, and our warden ma'ams, our canteen staffs, our security personnel, everyone, our administrative personnel, they are trying their level best to make us able to make us achieve a good success in our future life. Thank you very much. আমি তো বেসিক কনসেপ্টটা বুঝিয়ে নিয়েছিলাম চ্যাপ্টার। আচ্ছা, তাদের বেসে এক্সামটা দিয়েছি। অনেক ইন্টিরিয়র কোশ্চেন এসেছে এবং টপিক থেকে একটা কোশ্চেন পেপার দেখে খুব ভালো লেগেছে। Our teachers, bio teacher is from Kanpur and chemistry teacher is from Bihar. Also, physics teacher is also from Bihar and our maths teacher also is from Bihar. कॉलेज प्रेसिडेंसी जूनियर कॉलेज। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि
ये मतलब हमारे इस कॉलेज में बहुत सारे फैसिलिटी हम लोग को मिल रहा है। जैसे कि हम लोग को मतलब फर्स्ट ईयर में 29 नवंबर से हमारा जो मतलब नीट और जेई का क्लास शुरू हुआ है, उसमें जैसे कि हमारा मतलब बायो स्पेशलिस्ट टीचर फ्रॉम आवर साइंस सर फ्रॉम कानपुर एंड आवर केमिस्ट्री टीचर सर मोहित पांडे सर, जो हमको मतलब इतना अच्छा मतलब नॉलेज देते हैं कि हम लोग मतलब वी हैव नॉट वर्ड्स टू से अबाउट देम। और हमारे फिजिक्स टीचर्स और हमारे मैथ्स टीचर ससीराज सर और हमारे मतलब फिजिक्स टीचर्स भी इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि वी कांट से मतलब कुछ बोल नहीं सकते उन लोग के बारे में। अच्छा, आपने केमिस्ट्री के बारे में बोला, इसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो सब्जेक्ट दो पार्ट होता है, वो तो बहुत दिक्कत है वो समझने में। हाँ सर, वो सर एक एक टर्म को इतना अच्छे से मतलब डिफाइन करके हम लोग को मतलब समझा के देते हैं, ताकि मतलब हमारे मतलब हमको फिर अगर दिक्कत होता है तो हम लोग वी आर अवेलेबल इन एनी टाइम। मतलब उन लोग को हमेशा हम लोग को मिलता है। मतलब हम जब भी बोलते हैं उन लोग आते हैं, हमको समझाते हैं, हमारा डाउट यहीं पे है सर, हमको ये दिक्कत है वो दिक्कत है, मतलब सर लोग कोई एतराज ना हो के हमें मतलब समझाने के लिए आते हैं वो लोग। और रही बात हमारे बायो सर, वो तो जी जान लगाते हैं हमारे लिए, मतलब इतने अच्छे हैं क्या बोलूँ उनके बारे में। और केमिस्ट्री सर का तो बात मतलब तारीफ है। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सर। इस कोचिंग में तो सर इतना अच्छे से पढ़ाता है कि मतलब प्रॉब्लम नहीं रहता। प्रॉब्लम रहने से सर रहता है इधर पे 24 ऐसा ही है। मतलब प्रॉब्लम रहने से सर को पूछ सकते हैं, सर अच्छे से समझा देते हैं और हमें समझ में भी आता है। सर जो समझाता है वो बहुत अच्छे से। আচ্ছা, এই আপনি একজন অভিভাবক হিসাবে এই কলেজ সম্পর্কে কি বলতে চাচ্ছেন? ধন্যবাদ আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য এজ এ গার্জিয়ান। প্রথমে আমি আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের এই প্রোগ্রামটা টেলিকাস্ট করার জন্য। বিশেষত আমি একজন গার্জিয়ান এবং আমি একজন প্রাউড গার্জিয়ান হিসাবে নিজেকে মানি যে আমার মেয়ে, আমার শুধু একটাই মেয়ে, ওকে আমি হোস্টেলে দিতে মানে এত বেশি অ্যাডভান্স ছিলাম বা আমার এত ইচ্ছা ছিল, কারণ এই স্কুলের এখন তো ইমিডিয়েটলি স্কুল হয়েছে, আগে কলেজ ছিল আর কলেজ আছেও। মানে আমি এত বেশি সৌভাগ্য একজন গার্জিয়ান, এত ভালো ফ্যাকাল্টিস, এত ভালো ওদের সিস্টেম এডুকেশনের, বিশেষ করে যারা ম্যানেজমেন্টের মেম্বাররা আছেন এবং যারা শিক্ষক শিক্ষিকারা বা যারা আমাদের টিচাররা আছেন, ওয়ার্ডেন ম্যাম, আমাদের যারা বয়েজ হোস্টেলের যারা ওয়ার্ডেনরা আছেন, গার্লস হোস্টেলের ওয়ার্ডেন ম্যামরা আছেন, কুক যারা আছেন, বা এন্টায়ার এটা একটা ফ্যামিলি। এবং আমি এজ এ গার্জিয়ান এখানে আসি না, আমিও নিজে একটা অনুভব করি এটা একটা আমার ফ্যামিলির মতো হয়ে গেছে। বিশেষ করে আমার মেয়ের মুখ থেকে কোনোদিন মানে নট এ সিঙ্গেল ওয়ার্ড আজকের দিন পর্যন্ত শুনেছি। ওর তো 2 ইয়ার্স কমপ্লিট হতে যাচ্ছে, ও হায়ার সেকেন্ডারি ফাইনাল ইয়ারে দেবে, সায়েন্স স্ট্রিম নিয়েছে। ওর মুখ থেকে মানে কোনোদিন একটা কোথাও মানে একটা খারাপ কোনো বা স্কুলের সম্বন্ধে কলেজের সম্বন্ধে ওর মুখ থেকে নট এ সিঙ্গেল ওয়ার্ড আমি শুনেছি। আমি সব সময় আসা যাওয়া করি, আমার নিয়ারেস্ট আমার বাড়ি কালীঘাট মাসিমপুর লোকেটেড, কিন্তু সব সময় আসি, কিন্তু মানে একটা বাচ্চাকে দেখলে বোঝা যায় ও কোনো প্রবলেম ফেস করছে না, কিন্তু এরকম কিছু আমাদের যে গার্জেন আমার ফিল হয় না। এবং আমি আবার ধন্যবাদ জানাই স্কুলের ফ্যাকাল্টিস যারা আছেন। একটা ইনস্টিটিউট গঠন করতে বা এস্টাবলিশ করতে অনেক পরিশ্রমের দরকার হয়, কিন্তু স্যারদেরকে বিশেষ করে আমাদের সুয়েল স্যার, জিয়া স্যার, আভান স্যার, নিজাম স্যার, ইসরাফিল স্যার, যারা মানে এন্টায়ার যারা ফ্যাকাল্টিস আছেন ওদের সবাইকে ধন্যবাদ দেই। এবং ওদের এত বেশি হার্ড ওয়ার্কিং, কোনো সময় রাত্রে 11টার সময় যদি দরকার হয় মেয়ের সঙ্গে কথা বলার, যদি ফোন করি তখন ওদেরকে জিজ্ঞেস করি স্যাররা কোথায়। সেলফ স্টাডিতে বিশেষ করে স্যাররা রাত্রে 12টা 1টা পর্যন্ত ওদের ফ্যামিলির দিকে চিন্তা না করে বাচ্চাদের পিছনে এত বেশি পরিশ্রম করে, যার ফলে দেখা যায় যে প্রত্যেক ইয়ারে নিট, JEE বা বিভিন্ন এন্ট্রান্স এক্সামে ওদের এত বেশি স্টুডেন্টের মানে অ্যাচিভমেন্ট থাকে। আপনারা সামনেই দেখতে পারবেন, বিভিন্ন সাইনবোর্ডের মাধ্যমে লেখা আছে বাচ্চারা অত ভালো মার্কস স্কোর করে। এবং লাস্ট ইয়ার আমরা দেখেছি একটা স্টুডেন্ট 99 অল আসামে টপ করেছে ফিজিক্সে। এটা বহুত ভালো একটা সাইন। এরকম ইনস্টিটিউট সাধারণত আমরা পাই না। মানে ইতিমধ্যে CBSE এফিলিয়েটেড হয়েছে, প্রেসিডেন্সি জুনিয়র স্কুল হয়েছে, আমাদের একটা ভালো সুবর্ণ সুযোগ এসেছে। এবং আমি আমার একটা মেয়ে অলরেডি স্কুলে আছে এবং আমি আমার বাইরের ছেলেকেও নতুনভাবে এই স্কুলে ক্লাস 5-এ অ্যাডমিশন দিয়েছি। আশা রাখি ওদের ভবিষ্যৎ খুব সুন্দর হবে। এবং এখানে আমরা দেখেছি যে ছোট ক্লাসে রোবোটিক বা বিভিন্ন ধরনের সায়েন্টিফিক ওয়েতে ওদেরকে টিচিং প্রফেশন দেওয়া হবে। আর
আমি যে সময় কোনোদিন স্কুলের কোনো ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে যদি আমার এজ এ গার্জেন কোনো কিছু দরকার থাকে তাহলে আসার পরে দেখি কি সুন্দর প্রজেক্টর দিয়ে ওদের স্কুলগুলা মানে ক্লাসগুলা হচ্ছে এবং বায়োলজি ল্যাব হোক, ফিজিক্সের, কেমিস্ট্রির এত ভালোভাবে এলাবোরেটলি ওদেরকে এত সুন্দরভাবে পড়ানোর যে সিস্টেমটা, আমি নিজে মানে একজন প্রাউড গার্জেন। আমার শুধু একটা মেয়ের পরেও আমি হোস্টেলে দিতে এত বেশি খুশি। আর আমি আশা রাখবো, আমি জনপ্রতিনিধি পাবলিকের সঙ্গে রিলেটেড আছে এবং সোশ্যাল ওয়ার্কারে জড়িত আছি, এর জন্য এই স্কুলের মানে 100% এই স্কুলের বা এই কলেজের সঙ্গে কোঅপারেট করব আগামীতেও ভবিষ্যতেও। যদিও আমার বাচ্চা পড়ে না, কিন্তু ওদের সঙ্গে 100% খুবই ভালো। মেয়েদের জন্য এত বেশি সেফ সিকিউরিটি, আমার নিশ্চিন্তভাবে গার্জেন হিসাবে ঘরে ঘুমাতে পারি রাত্রে, কোনো আমাদের দুশ্চিন্তা কিছু থাকে না। ওয়ার্ডেনার যারা আছেন ওদেরকে এত ভালোভাবে কেয়ার নেয়, ওদের এত ভালোভাবে টেক আপ করে। আমার মেয়ে ইতিমধ্যে অসুস্থ হয়েছিল, ও ডাক্তারের যেগুলা রুটিন অনুযায়ী খাওয়া দাওয়ার দিয়ে স্পেশালি ওর জন্য আলাদা দেওয়া হয়, যাতে ঘরের কোনো জিনিস ওদের কমি ফিল হয় না। আর মানে বলার কিছু নাই, 100% খুবই ভালো এবং আগামী দিনে এটা একটা ভালো একটা ইনস্টিটিউট হয়ে उठपे। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। एक्चुअली यहाँ के मैक्सिमम बच्चे बंगाली स्टूडेंट्स हैं। अच्छा। और हमारा जो पढ़ाने का वे है वो इंग्लिश मीडियम होता है। भले ही हम लोग समझाते उसको हिंदी में है, लेकिन जो लिखाना हुआ ये सब हम लोग इंग्लिश में लिखाते हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश। तो जो बंगाली स्ट्रीम के बच्चे होते हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है, और जो सीबीएसई के बच्चे जो ऑलरेडी इंग्लिश स्ट्रीम से हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बस यही ऑब्जर्व किया हूँ। बात बाकी बच्चा, कोई भी बच्चा तो कमजोर होता नहीं है। सबसे पहले कि उसका बैकग्राउंड क्या है, किस स्ट्रीम से आया है। तो यहाँ मैक्सिमम बच्चे बंगाली से हैं, थोड़ा सा उनको दिक्कत हो रही है, जैसे किसी भी क्वेश्चन को पढ़ कर समझने में, उसको सॉल्व करने में। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझना आसान, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, उसके बाद उसको सॉल्व कैसे करना है, किस वे से उसको ट्रीट करना है क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने आना चाहिए। माई सेल्फ मोहम्मद साहिद रजा from Kanpur. I especially teaching for biology for NEET. आप लोगों को जानकर बड़ी खुशी होगी कि आपके शहर में नीट और आकाश लेवल की कोचिंग स्टार्ट हुई है। इसमें हम बच्चों को बहुत ही आसान तरीके से टिकी वे में चीज़ों को समझाते हैं, बताते हैं, जो कि अदर कोचिंगों में यहाँ हमने रियलाइज किया है। अदर कोचिंगों में ऐसा कुछ है नहीं, और सारी फैसिलिटी दी जा रही है आपको। सारे आपको जैसे नीट के लिए एलेन प्रोवाइड करता, सारी चीजें यहाँ प्रोवाइड की जाएंगी। आपको बुकलेट दिए जा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कास्ट नहीं लिया जाएगा, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। हर वीक आपको दिए जाएंगे, टेस्ट लिए जाएंगे, वीकली टेस्ट होते रहते हैं, डीपीपी सॉल्व कराए जाते हैं, और जो भी डाउट होता है 24/7 आवर सब टीचर अवेलेबल होते हैं यहाँ पे। और यहाँ टीचर की तरह नहीं, समझ लो अपने स्टूडेंट को फ्रेंड की तरह ले, क्योंकि टीचर अगर टीचर की तरह हो जाता है तो फ्रेंड उससे क्लोज नहीं हो पाता। सबसे जरूरी है कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना। अगर टीचर स्टूडेंट का कोऑर्डिनेशन मेंटेन हो गया तो डरेगा नहीं तो अच्छे तरीके से समझाएगा भी और समझ भी जाएगा बच्चा। नहीं तो क्या होगा, बच्चे क्या करते हैं, बहुत ही हेजिटेशन महसूस करते हैं, टीचर से दूर भागते हैं। अगर करीब आएंगे, चीजों को कायदे से समझाएगा टीचर, वो भी कायदे से समझेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना। अदर जगह कोचिंग में क्या है, टीचर अपने आप को बहुत हाई लेवल समझता है, स्टूडेंट के करीब जाता ही नहीं, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, कोई चीज का सोल्यूशन न हो, डरता है बता। टीचर क्या है, टीचर तो अपने में रहते हैं, उनका भाई इतनी सैलरी होती है, कोई उनको लेना देना नहीं होता स्टूडेंट से। यहाँ क्या है, हम लोग आए हैं स्टूडेंट को बेसिक जो नॉलेज उनकी बड़ी वीक है उसको हम स्ट्रांग करेंगे। जैसा आकाश नीट में वही सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी और कम पैसे में। ये जान लीजिए इतने कम पैसे में ऑल इंडिया में कहीं कोचिंग नहीं चल रही जो हम जानते हैं। और हमने आकाश में भी पढ़ाया हुआ है, न्यू लाइट आपको कानपुर में भी पढ़ाया है, ग्रेविटी में पढ़ाया है, अकोला में, अमृतसर फेमस कोचिंग वहां पढ़ाए हैं, तो अदर और अभी पुणे में पढ़ा के आए हैं। तो सर कहे कि भाई यहाँ माइनॉरिटी को आगे थोड़ा ले जाना, इसलिए हम लोगों को स्पेशली बुलाया गया, तो इसलिए हम यहाँ आए। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है। इरादों में दम हो तो मंजिल झुका करती है।
सर ने सही कहा। एक्चुअली होता क्या है कि नॉर्थ ईस्ट और सब कॉर्नर के मामले में, जितने भी कॉर्नर है कंट्री के, थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सा माइनॉरिटी है, माइनर है हर मामले में, ट्रांसपोर्ट हो या एजुकेशन हो। तो हम लोग इसी नेक इरादे से आए हैं यहाँ पे आके माइनॉरिटी को डेवलप करें। जो बच्चे हैं जो साइंस से मतलब स्ट्रीम मतलब कमजोर हैं, वीक हैं, उनको कैसे पढ़ाना है, कैसे समझाना है, कैसे ट्रिक से बड़े बड़े क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व करना है। क्योंकि कंपटीशन में होता क्या है कि कम समय में बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रिकी पढ़ाना ही पड़ेगा, लॉजिकली पढ़ाना ही पड़ेगा। तो बस हम लोग का यही इंटेंशन है यहाँ आने का। अदरवाइज पैसा तो हम लोग कहीं भी कमा सकते हैं। बिहार में भी मैं कमा रहा था, जॉब कर रहा था, वहां भी पढ़ा रहा था, आकाश में भी पढ़ा रहा था। तो बस यही है। बच्चों से क्या फीडबैक मिल रही है? जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो उतनी अच्छी फीडबैक नहीं थी, लेकिन जैसे हम लोग पढ़ाना शुरू किए अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, तो अब सारे बच्चे प्रोग्रेस में हैं, तो पॉजिटिव। और इसका प्रूफ आपको आफ्टर 2 ईयर मिल जाएगा, अभी तो स्टार्ट हुई। आप मैथ्स का Myself Sasiraz, I teach mathematics मैथ्स for JEE and board level. मैथ्स मुझे भी डर लगता है। Actually प्रॉब्लम आप एक बात बताइए, यहाँ पर बराकबली में मैथ्स कोई लेना नहीं चाहता। हाँ, यही मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअली आपने पूछा था सर से कि यहाँ पे मतलब क्या कमी, क्या वीक पॉइंट दिखा बच्चों में, जो जनरली बच्चे फील करते हैं, आपने फील किया। तो सबसे पहले तो आपने ये भी पॉइंट बोला कि बिहार में या यूपी साइड ज्यादा बच्चे नीट या जेई क्रैक करते हैं, या साउथ के बच्चे ज्यादा नीट और जेई क्रैक करते हैं। तो उसके पीछे रीजन है, और नॉर्थ ईस्ट के बच्चे उतना नहीं कर पाते हैं, एक अच्छा मेहनत करने के बावजूद भी। क्योंकि रीजन ये है कि हम लोग के साइड ज्यादातर बिहार यूपी में क्या होता है कि हम लोग बोर्ड और जेई और नीट को अलग नहीं करते हैं, हम लोग साथ में चलते हैं। बोर्ड को भी साथ में, हमें बोर्ड भी करना है और जेई भी करना है। लेकिन यहाँ के बच्चों में क्या मेंटेलिटी पहले ही से बना हुआ है कि हमें पहले बोर्ड करना है तब जेई करना है। पहले बोर्ड, हम 11th-12th बोर्ड पढ़ेंगे, उसके बाद हम 1 साल जेई या नीट के लिए प्रिपरेशन करेंगे। ये चीज बच्चों को पीछे कर देता है, नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को। अदर स्टेट में ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि हम लोग के यहाँ या कोटा का अपने नाम सबसे ज्यादा अगर बेस्ट जेई और नीट के लिए जाना जाता है किसी शहर को, तो राजस्थान का कोटा। तो वहां यही देखा गया है कि यहाँ जो बच्चे सोचते हैं कि हम 12th करने के बाद जेई नीट का करेंगे, वहां पे बच्चे 7th क्लास से करते हैं। तो सोचिए आपकी कौन बच्चा सक्सेस होगा जेई और नीट में, 7th क्लास वाला या 11th-12th वाला। तो सर लोग ने हम लोग से बात किया, सर ने भी सोचा कि इस जो कोटा का पैटर्न है 7 से 8 से 9 से 10 से, इस चीज को यहाँ लाया जाए और यहाँ के आसपास के बच्चों को ये चीज दिया जाए। तो ये फैसिलिटी जो मोस्ट मतलब है कि 7 से 8 से 9 से 10 से ही बच्चे को जेई और नीट के जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, बच्चे हैं, उनको इस लाइन में लाया जाए और उनको मोटिवेट करके जितना अच्छा से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट हो, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। आपको क्या लगता है? यहाँ पे एक बात है कि आप 7 से पढ़ा रहे कोडिंग, ये चालू हो जाएगा कुछ दिन के बाद। कोडिंग नहीं, ये क्या एकेडमिक से एक्स्ट्रा प्रेशराइज हो जाएगा बच्चे? नहीं, एक्स्ट्रा प्रेशर कुछ राइज नहीं होगा। उसी में थोड़ा सा कहते हैं ना, जैसे अगर मान लिया कहते हैं ना कि इस चीज पे अगर आना है, अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आना है हमें, मान लीजिए कि इस लेवल पे हमें आना है, तो और यहाँ पे हम आ चुके हैं, तो बस 2 स्टेप ही आगे बढ़ना है, ज्यादा स्टेप हमें आगे नहीं चलना। लगेगा कि यहाँ से यहाँ अगर सबसे नीचे से देखेंगे तो बहुत ज्यादा हाइट दिखेगा, लेकिन जब आप ऑलरेडी यहाँ पे पहुंचना ही है कि 7th पास करने के लिए आप पहुंचना है, तो इसी में 2 स्टेप का एडिशन होगा और कुछ नहीं होगा। तो जब इतना बर्डन ले सकते हैं तो 2 स्टेप और क्यों नहीं। आपसे इसका क्या होगा कि आपको एक बेहतर रिजल्ट, आपको 1 साल एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ेगा। एक्स्ट्रा रिजल्ट देने मतलब एक्स्ट्रा टाइम देने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप नहीं कम्पीट कर पाएंगे। जो 5 साल से ऑलरेडी 7th क्लास से कर रहा है प्रिपरेशन, आप सोचेंगे 1 साल में उससे मैं कम्पीट कर लूं, तो मतलब जितने भी बेस्ट, जो भी अंडर 1000 रैंकर होते हैं इधर जेई और नीट में, अंडर 100 रैंकर, उनको पता कीजिएगा कब से ये जेई या नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर ऐसा भी नहीं है कि नीट और जेई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है। आजकल के जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो रहे हैं सब एनसीईआरटी बेस्ड है। बस थोड़ा सा जो बोर्ड के टीचर पढ़ा रहे हैं या जो जेई के बच्चे मतलब जेई के टीचर जो पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी में थोड़ा सा ऐड करना होता है। इसलिए मेरे हिसाब से तो कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आना चाहिए। और एक्स्ट्रा प्रेशर इन द सेंस की सोचिए ना, आगे आपको कल 10 kg का मान लिया डंबल उठाना है,
किसी कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो 10 kg का वेट उठाना है, तो आपको ये ट्राई करना चाहिए ना कि जब आप प्रैक्टिस करें तो 12 kg का से प्रैक्टिस करें, तब तो 10 kg उठाना आपके लिए आसान होगा। लेकिन आप पहले ही अपने आप को कन्फाइन कर दे रहे हैं कि नहीं हमें बोर्ड ही करना है, तो अब आप पहले ही 8 kg का वेट उठा रहे हैं, तो 10 kg का वेट आपसे कैसे उठेगा। लेकिन आप 12 kg का प्रैक्टिस करके आएंगे तब तो 10 kg आपको आसान लगेगा उठाना। तो इसलिए पहले हाई लेवल का पढ़िए, तो जो उससे लो वाला तो आपको अपने आप इजी लगने लगेगा। और सिलेबस तो दोनों के सेम ही, सिलेबस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आसान कर दिया है ये सब कुछ। हाँ, अब तो बहुत सारा आसान है। ऑल इंडिया जो स्टेट है सब एक कंबाइंड करके नीट ले रहा है, एक ही एग्जाम होते हैं तो बहुत इजी हो गए हैं कंपेयर टू जहाँ भी मानसिकता बनी हुई। मैं नॉर्थ ईस्ट की बात नहीं कर रहा, पूरी ऑल इंडिया ऑल ओवर इंडिया में बात कर रहा हूँ। जहाँ भी ऐसी मानसिकता बनी हुई है कि नहीं पहले बोर्ड कर लें या कंपटीशन, वहाँ पे बच्चे बहुत पीछे, वहाँ पे हाई मोटिवेशन की जरूरत है। बहुत ज्यादा बच्चे दोनों पैरेलली लेके चलना चाहिए, पैरेलल में ये भी चलेगा ये भी चलेगा, दोनों पॉसिबल है। बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप ही सोचो सिलेबस एक है, नीट के लिए एनसीईआरटी पढ़ना है, चीजें वही चीजें हैं। तो बोर्ड जो नीट के लिए तैयारी कर रहा है, बोर्ड क्या है उसके लिए, तो उसके लिए खेल है ना। वो ऑल इंडिया और स्टेट बोर्ड होता है, ऑल इंडिया लेवल की तैयारी की जाती है, तो चीजें हाई लेवल पे पढ़ाई जाती है। और का एडिशन ज्यादा नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कोई बच्चा कितना कर रहा है बस वही निखार आता है। कंपटीशन तो वही है ना, कम समय में आप क्वेश्चन को कितने जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि किसी क्वेश्चन में 1 मिनट देना है, लेकिन बच्चों की कैलकुलेशन क्या है, स्लो है, ट्रिक नहीं सीख पाए हैं, तो 1 मिनट क्वेश्चन को 4 मिनट लगा देते हैं। और वही चीजें हम सब यहाँ इम्प्रूव कराएंगे, और वही चीज हम लोग बताएंगे कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। जैसे 45 मिनट में बायो करना है आपको, केमिस्ट्री को 1 आवर दो, 1 आवर दो फिजिक्स को, 50 मिनट सर्किल फिल करना होता है। एंट्रेंस इज अ टेक्निकल स्टडी एंड टेक्निकल टीचिंग, अदरवाइज इट डज नॉट मैटर। ऐसे तो आता सभी को है, तो टाइमिंग का खेल होता है हर जगह, हर बच्चे को आता है, पढ़ के जाते हैं सभी। वही टाइम सुने भी होंगे आप, पेपर सॉल्व नहीं कर पाए, पूरा पेपर ही नहीं देख पाए, क्वेश्चन ही नहीं देख पाए। इसके लिए क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट। वही चीजें हम सब प्रैक्टिस, पेपर जितना प्रैक्टिस कराएंगे, टेस्ट लेंगे, उससे इम्प्रूव होते हैं। अभी प्रेसिडेंसी में कितना, मतलब कौन सा क्लास से ये स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग? मतलब ये तो फ्रॉम 9 अभी 9 से स्टार्ट कर रहे हैं, और आगे में 7 से स्टार्ट करने का प्लानिंग है? अभी तो यहाँ स्टार्ट हुआ है फ्रॉम 9। ठीक है। इंशाल्लाह पहले से क्या होता था, पहले ट्रिपल ई हुआ करता था, एम्स हुआ करता था, मेडिकल का नीट AIPMD हुआ करता था। तो पहले क्वेश्चन का लेवल होता था, थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन पूछ दिया जाता था। लेकिन आज से 4-5 साल पहले से बोल रहे हैं, 4-5 साल पहले से हम देख रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं सब एनसीईआरटी से ही है। तो बच्चों को प्रैक्टिस की जरूरत, मेन जरूरत है पेरेंट्स को, अपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। पेरेंट्स पहले ही माइंड में रखा है कि बोर्ड पहले कराएंगे फिर नीट कराएंगे, उनको ये नहीं पता ऑल इंडिया में क्या चल रहा है, इसलिए हम पीछे हैं। अच्छा, अभी देखिए बराकवेली में सुपर 30-40 ये सब बहुत हो रहा है ये पिछले कुछ महीने में। हाँ। प्रेसिडेंसी कॉलेज इसमें अलग कैसा है? अलग है, यहाँ टीचर ला गए हैं कोटा से, कानपुर से, और आपके दिल्ली से आए हुए हैं, इसलिए वहाँ के टीचर जो आए हैं, और हम लोग अप्रॉक्स हमारे खुद ही स्टूडेंट हैं, मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मोर देन 1000 सिलेक्ट हो गए हैं। और हम चीजों को कैसे वो तो यहाँ इसलिए आए हैं कि थोड़ा माइनॉरिटी बड़ा पीछे है, तो सर लोग यहाँ का मैनेजमेंट इतना अच्छा है, यहाँ के लोगों को आगे बहुत आगे ले जाना है, उनकी सोच बहुत बड़ी है, और 24/7 वो अवेलेबल भी होते हैं, इसलिए लाया गया। ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं भी कमा सकते हैं, पर ये क्या आप लोग दुआ 1 साल कुछ टाइम यहाँ भी दे दीजिए, दुआ लगेगी लोगों की, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी गुड आफ्टरनून। First of all, warm greetings from Presidency Senior Secondary School. Today we are indeed very glad to declare the results of the Super 30 exam that we had conducted on the 6th of February, 13th of February, and today the 6th of March 2022. After evaluation of the results meticulously, today we have declared it. The first prize was bagged by A.H. Ali Ahmed Mazumdar, because he was honored with a check of rupees 25,000. Second prize, Muhammad Nur Hassan Mazumdar, he was honored with a check of rupees 20,000. Third prize, Farhana Begum Laskar, he was also honored with a check of rupees 15,000, and many more checks were also given up to the 10th ranking. Here at Presidency, these 30 students will be provided complete free coaching
by faculties from Kota, Kanpur, Bihar, specialized in biology, mathematics, physics and chemistry. The students will not be charged any teddy pie. They will be provided full academic facilities, completely free of cost. This will be the honor of their merit in qualifying this examination. Here at Presidency, we also have hostel facilities. Students can avail with good hygienic food and sanitation. This year we have also started the school from nursery to class 10. So admissions are going on, and I request all the guardians and the honorable members of the society to support us, bless us in this new venture. And we have certain features. The first feature is that no private tuition will be required. Everything will be provided within the campus. Second feature is the Maktab education, which is optional. One can opt for it. The third feature is, in order to equip the students technically so that they can come out at par with the national and international standards, technologically boost their morale, we are going to start the drone and robotics technological classes. We will have a separate department for it. Then we will also be providing the games facilities, and we are also going towards the affiliation with Central Board of Secondary Education, New Delhi. With these few words, I end my talk here. Thank you. रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तारीफ उस खुदा की जिसने हम सभी को बनाया है। मैं प्रेसिडेंसी जूनियर कॉलेज का डायरेक्टर डॉक्टर सोहेल अहमद खान सोसाइटी के लिए बस एक चीज बोलना चाहता हूँ कि हम लोगों का जो प्रेसिडेंसी का मोटो क्या है और क्यों प्रेसिडेंसी खोले है और बच्चे लोग क्यों प्रेसिडेंसी में एडमिशन लिए हैं। प्रिंसिपल सर ने मैक्सिमम चीज बोल दी है कि आज हम लोगों ने सुपर 30 का रिजल्ट अनाउंस किए हैं, उसमें टॉप बच्चों को प्राइज भी दिए हैं और 30 के बारे में डेफिनेशन भी बोले। तो मैं जस्ट ये बोलना चाहता हूँ कि प्रेसिडेंसी का खासियत क्या है। आजकल हमने देखा है टोटल बरकबली का एजुकेशन या टोटल नॉर्थ ईस्ट का एजुकेशन पकड़िए, सभी जगह पे बच्चों को नोट्स के ऊपर डिपेंडेंट किया जाता है। कोई भी ऐसे स्कूल कॉलेज नहीं देखेंगे जहाँ पे प्राइवेट ट्यूशन का जरूरत नहीं है। हर एक जगह में लगता है कि प्राइवेट ट्यूशन का ही जरूरत है। तो जैसे आप देखिए, एक बच्चे को अगर स्कूल में अच्छे तरह से पढ़ाया जाएगा तो ट्यूशन का क्या जरूरत है, क्योंकि वही सिलेबस, वही बुक, वही किताब को स्कूल में पढ़ाया जाता है। फिर दोबारा ट्यूशन में क्यों बुलाते हैं? तो ये जो चीज है मुझे बहुत बुरा लगा है और इसकी वजह से हमने देखा है बहुत बच्चों का लाइफ बर्बाद हुआ है। इसका रीजन ये है कि बच्चे पूरा दिन ट्यूशन दौड़ भाग करते रहते हैं और उसके बाद शाम को आके टायर्ड होके सो जाते हैं। ना पेरेंट्स सोचते हैं, ना टीचर सोचते हैं। एक एजुकेशन को एक प्रोफेशनलाइज बिजनेस के हिसाब से ट्रीट किया गया है होल बराकवेली में। इसके खिलाफ हम सभी हैं। इसलिए हम सभी पीएचडी स्कॉलर उस दौरान इसके बारे में सोच के शुरुआत किए है कि प्रेसिडेंसी ऐसे एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए जहां पे बच्चों को बाहर में कोई ट्यूशन का जरूरत ना हो, एक ही प्लेटफॉर्म में सब कुछ दिया जाए। ये एक्स्ट्रा पैसा भी जाता है, स्टूडेंट का लेवल भी होता है, शाम को आके सो के पूरा टाइम बर्बाद, सब कुछ रिजल्ट भी खराब होता है। नॉलेज के नाम पे कुछ नहीं दिया जाता है। जस्ट परसेंटेज को बढ़ाने के लिए मेरा बच्चा 5 ट्यूशन पढ़ता है, 10 ट्यूशन पढ़ता है, ये वो करता है, वो करता है, जस्ट शो ऑफ करने के लिए पेरेंट्स भी, टीचर्स भी, सभी लग गए हैं। हम लोग इस भाग दौड़ को टोटली उसका अगेंस्ट के हिसाब से हम चल रहे हैं। हमने यहाँ पे 2017 से प्रेसिडेंसी जूनियर कॉलेज खुले थे। यहाँ पे एक भी बच्चों को बाहर में कोई ट्यूशन का जरूरत नहीं हुआ। हमारा जो एजुकेशन, हमने जिस एजुकेशन लेवल दिए हैं, आप लोग जान के खुशी होंगे, हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चों को नीट जेईई में मिला है। बहुत सारे बच्चों को लास्ट ईयर भी हमारा 2-3 बच्चे स्टेट में टॉपर किए हैं। जो एक स्टूडेंट का ख्वाब होता है कि फिजिक्स में आउट ऑफ 100 99 मिलना, हमारा 2 बच्चे को 99 मिले थे 2020 में। तो यहाँ पे हमने हमारा और एक बच्चे को 98 मिला है। हमने एजुकेशन को ऐसे देना चाहते हैं कि जस्ट मार्क्स में ना रहे, बच्चों का जो ओवरऑल डेवलपमेंट हो वो ऐसे होना चाहिए। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, आप पूरा बराकवेली का एजुकेशन देखेंगे, क्लास 10-12 होने के बाद बच्चे बेकार रहते हैं। क्यों बेकार रहते हैं? उसका रीजन ये है कि हमने बच्चों को कुछ बनाया नहीं, बच्चों के अंदर में वो ख्वाब भी नहीं डाला कि तुमको ये बनना है। मान लीजिए अगर छोटे बच्चे क्लास नर्सरी से लेके क्लास 10 तक एक बच्चों को मैं एक छोटा सा चीज सिखा दूं
लाइक मैं बोलूं एक सिलाई मशीन का काम, एम्ब्रॉयडरी का काम लड़कियों को पढ़ने के साथ साथ, तो क्या होगा क्लास 10 के बाद वो लड़की बेकार नहीं रहेगी, कम से कम बोलेगी मैं खा सकता हूँ कुछ करके। हम लोग टोटली डिपेंड हो गए कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। क्यों गवर्नमेंट जॉब चाहिए? स्कूल सिस्टम ऐसे बनाओ कि आपका यहाँ के जो बच्चे निकले वो खुद बोले कि मैं खुद एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन खोल सकता हूँ, मैं खुद कुछ ना कुछ कर सकता हूँ, मैं गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ। इसीलिए हम लोगों ने सोचा है कि सेल्फ डिपेंड होने के लिए इस बार कुछ न कुछ किया जाए। और बरकवेली का यहाँ पे एजुकेशन के सिस्टम के खिलाफ हम लोग चल रहे हैं और यहाँ पे हमने क्लास 1 से नर्सरी से लेके इस बार शुरू किए हैं, जहाँ पे बच्चों को ना ट्यूशन जाने का जरूरत होगा, ना दौड़ भाग करने का जरूरत होगा। बच्चों को हम लोग ऐसे बनाना चाहते हैं जैसे मान लीजिए कंप्यूटर का काम। आजकल आप लोगों को मालूम होगा आज से लेके 10 साल के बाद ऐसे फील्ड आएगा जिसमें विदाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नॉलेज, कंप्यूटर का प्रोग्राम का नॉलेज, कोडिंग डिकोडिंग का नॉलेज अगर नहीं मालूम होगा तो वो बच्चा सामने जाके कुछ करने के लिए वो सब बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए हमने ये एक दावे के साथ बोल सकता हूँ कि प्रेसिडेंसी ने जो ड्रोन, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्लासेस शुरू किया है वो बरकवेली में कोई नहीं दे रहा है, कोई सोच भी नहीं रहा है। लेकिन आप चाइना, जापान, यूएस, इसका स्कूलिंग सिस्टम देखिए, छोटे छोटे बच्चे रोबोट लेके खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ये सब आइडिया लेते हैं। तो हम चाहते हैं बच्चों को यहाँ पे आपका स्टडी सिलेबस के साथ साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दिया जाए, सो दैट फ्यूचर में जाके वो ऐसे ना बोले कि मैं बेकार हूं। अगर मान लीजिए स्कूल का बच्चे को अगर मैं टेक्निकल पार्ट बोलूं कि इलेक्ट्रिक का काम, इलेक्ट्रिकल जो होता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जो पार्ट्स होता है, कुछ साइड बाई साइड थोड़ा थोड़ा देखे जाओ तो 10 साल में इंशाल्लाह उतना तो सिखा सकता हूं कि वो बोलेगा कि नहीं मैं इस फील्ड में कुछ कर सकता हूं। तो हमने प्रेसिडेंसी ये एम लेके खुले हैं कि हम लोग पहले बच्चों को ये सब पढ़ने के साथ साथ ये सब देंगे और उसका मॉरल एजुकेशन सबसे जरूरी है। मॉरल एजुकेशन में बार बार इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज का स्टडी लगता है कि मोबाइल में कन्फाइंड है। पेरेंट्स बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, उस मोबाइल में क्या करता है वो पूरा दिन लाइफ बर्बाद करता है। तो हम लोग ये नहीं चाहते हैं हमारा कॉलेज में, हॉस्टल में, जहां पे भी हो कोई मोबाइल अलाउड नहीं है। और इंशाल्लाह आप लोग, मैं पेरेंट्स को खास करके बोलना चाहता हूं थ्रू सोशल मीडिया कि आप आपका बच्चे का फ्यूचर आप ही बनाते हो और आप ही बिगाड़ते हो। इसका रीजन ये है बच्चों के सामने आप ही अगर बुरा बिहेव करोगे तो बच्चा भी वही सीखेगा। बच्चों के साथ में अब बुरा बिहेव करते हो, एक बच्चे को खराब बोल के खराब बनाते हो। आप पहले आपका बच्चा या बच्ची को डॉक्टर बनाना है तो आप पहले डॉक्टर की मम्मी के जैसे बन के दिखाओ कि मैं डॉक्टर का मम्मी हूँ, ऐसे मुझे बिहेव करना चाहिए मेरे बच्चों के साथ। 24 आवर्स में बच्चा जितना टाइम पढ़ता है आप भी उसके साथ में बैठ के रहो कि तुम क्या कर रहे हो। मोबाइल देके आप जाके सीरियल देखने लग जाते हो, दूसरा कोई काम में लग जाता है, तो उसमें क्या होता है हमारा फ्यूचर डेवलप नहीं होगा। ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। जब तक पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट मिलके काम नहीं करेंगे तो हम स्टूडेंट्स को आग नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इंशाल्लाह आप लोग आइए, प्रेसिडेंसी का बहुत सारे खासियत है। इंशाल्लाह मेरा बाकी सभी मैनेजमेंट मेंबर्स बोलेंगे। अस्सलामु आलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। প্রেসিডেন্সি পরিবারের পক্ষ থেকে বরাকবাসীদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা। গত 6 ফেব্রুয়ারি আমাদের যেই বৃত্তি পরীক্ষার শুভ উন্মোচন হয়েছিল আজ তার ফল প্রকাশ। পুরস্কারপ্রাপ্ত 30 জনকে নিয়ে চলবে আমাদের ফ্রি নিট এবং জিএর শিক্ষা ব্যবস্থা। আগামী দিনে তাদের মধ্যে থেকে আমরা পাবো মইনুল হক, রবি খান্নান এবং বুরহান উদ্দিনদের মতো প্রমুখ ব্যক্তিদের। এই বছর থেকে আমরা শুরু করেছি প্রেসিডেন্সি স্কুল, যাতে নার্সারি থেকে ক্লাস 12 পর্যন্ত পড়ানো হবে। এই স্কুলের বিশেষত্ব হল মক্তব এডুকেশন, মোরাল ভ্যালু বেসড এডুকেশন, টিউশন ফ্রি ক্যাম্পাস, ড্রোন, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সি এবং রোবোটিক শিক্ষা ব্যবস্থা, যা বরাকে প্রথম। এছাড়া আমাদের হোস্টেলেরও সুবন্দোবস্ত ব্যবস্থা আছে। নবম শ্রেণী থেকে আমরা শুরু করেছি ইন্টিগ্রেটেড নেট জির শিক্ষা ব্যবস্থা, যা বরাকে প্রথম। আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ টিউশন ফ্রি স্কুল চালানোর। গত 2017 থেকে আমরা আমাদের অঙ্গীকারে অটুট। আমরা আগামী দিনে আমাদের সমাজকে সুষ্ঠু, সবল, শিক্ষিত এবং মার্জিত জনবল উপহার দেওয়ার অঙ্গীকার এই প্রেসিডেন্সি গ্রুপের। আবারও বরাকবাসীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার জীবনীকা টানছি। ধন্যবাদ।